کراچی میں اسٹار گیٹ کے قریب پاکستان زندہ باد ریلی، شارع فیصل پر بدترین ٹریفک جام کے بعد پولیس کا لاٹھی چارج، پکڑ دھکڑ، فیصل وابدہ بھی زیر حراست۔ کراچی میں سپر ہائی وے پر المناک حادثہ، آئل ٹینکر اور گاڑیوں کی ٹکر، 3 افراد جاں بحق، کئی گاڑیاں راکھ، اہم شاہراہ بند ہونے سے ہزاروں افراد کئی گھنٹے تک خوار۔ گاڑیاں چھوڑ کے تو بھاگیں گے نا، کوئی انتظام ہی نہیں ہے یہاں پہ، تو کیا کریں گے؟ کروڑوں روپے کا نقصان ہو گیا، اربوں روپے کا نقصان ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی گاڑیاں جلی کھڑی ہیں۔ بھارتی ہائی کمشنر کو کراچی میں تقریب سے روکنے پر عبدالباسط کی طلبی، دلی سے باہر جانے پر پابندی۔ پاکستانی ہائی کمشنر کہتے ہیں بھارت ظالمانہ پالیسیاں بدلے، کشمیر میں ظلم بند کیا جائے۔ مقبوضہ وادی میں بھارتی فورسز نہتے کشمیریوں کے خون کی پیاسی، مزید 2 طالب علم شہید، کرفیو کے باوجود ریلیاں۔ روز مخالفانہ بیان دیتے ہیں، روز وہ اپنا ٹی وی پہ آ کے جو ہے بڑھ چڑھ کے پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں۔ ہم ان کی کسی ایسی باتوں کا نہ بیان دیتے نہ میں اس کا نوٹس لیتا ہوں، کیونکہ نوٹس پاکستان کے عوام لے رہے ہیں۔ پاکستان کے عوام کل کراچی میں بھی انہوں نے جواب دیا ہے۔ وزیر اعظم نے سیاسی مخالفین کو پھر لتاڑ دیا، دلوں میں بغض ہوتا تو خیبر پختونخوا میں اپنی حکومت بناتے۔ چترال میں خطاب، لواری ٹنل جون 2017 میں مکمل کرنے اور کئی ترقیاتی منصوبوں کا اعلان۔ وزیر اعظم کے خلاف ریفرنسز مسترد ہونے پر اپوزیشن برہم، عمران خان کل قومی اسمبلی میں احتجاج ریکارڈ کرائیں گے۔ خورشید شاہ کا اسپیکر کے فیصلے کے خلاف عدالت جانے کا اشارہ۔ ڈرائیونگ مارچ کی تاریخ میں تبدیلی کا امکان، پی ٹی آئی کا اہم اجلاس جمعے کو بلا لیا گیا۔ طاہر القادری نے بھی حکومت مخالف تحریک تیز کرنے کی تیاری پکڑ لی۔ چودھری شجاعت نے ڈرائیونگ مارچ کی مخالفت کر دی، عمران خان سے رابطہ کرنے کا فیصلہ، کہتے ہیں گھر کے گھیراؤ کی رسم اچھی نہیں۔ پاکستان کا دھڑم تختہ ہو جائے، دھرنے والوں کو فرق نہیں پڑتا، شہباز شریف برہم، کہتے ہیں سیاسی مخالفین ترقی کی راہ میں روڑے اٹکا رہے ہیں۔ آپ ٹھنڈے میٹھے سبحان اللہ ہیں، لیکن آپ کے 2-3 وزراء ہیں زہر کی ڈلیاں ہیں، زہر کی ڈلیاں، نمک کے بورے ہیں، انہوں نے کبھی میٹھا کھایا نہیں، نہ میٹھا کبھی بولا ہے۔ حکمران پائے اور حلوہ پوری کے شدائی، مولا بخش چاندیوں کی دہائی، وزیر اعظم کا بھاری مینڈیٹ ایک جھٹکا برداشت نہیں کر پائے گا۔ نواز شریف تو میں نے کہہ دیا نااہل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ حد ہی ہو گئی، زعیم قادری جیلوں کے نقش قدم پر چل پڑے، پھسل گئی زبان، صحافی حیران۔ کراچی میں بینرز کی یلغار، پولیس کے لیے ملزم پکڑنا دشوار، متحدہ بانی کے مخالفین بھی کھل کر سامنے آ گئے۔ کراچی میں ضمنی الیکشن کا میدان کل سجے گا، رینجرز کی تعیناتی کا فیصلہ، پی ایس 127 میں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ دشمن بارڈر پر نہیں درمیان ہی میں موجود ہے، نیشنل ایکشن پلان کے 20 میں سے 9 نکات کا تعلق صوبوں سے ہے، چودھری نثار کا آسان ہے کوئٹہ پر سینٹ میں بیان۔ ملٹری پولیس پر حملوں میں ملوث ہونے کا الزام، کراچی میں کل عدم تنظیم کے 2 دہشت گرد گرفتار، اسلحہ برآمد، ساتھیوں کو پکڑنے کے لیے چھاپے۔ گجرانوالہ میں بیوٹی پارلر میں ڈکیتی کا ڈراپ سین، واردات کرنے والی 2 بہنیں گرفتار، اسلحہ برآمد۔ یوم فضائیہ پر ملک بھر میں تقاریب، راشد منہاس کی مزار پر فاتح خوانی، 1 منٹ میں 5 طیاروں کی تباہی، بھارت کے لیے بھلانا ناممکن۔ دمام میں پھنسے پاکستانیوں کو خالی ہاتھ وطن بھیجنے کی تیاری، معاوضہ نہیں ملا، زبردستی واپس بھیجا جا رہا ہے، گھر جا کر بچوں کو کیا منہ دکھائیں گے، متاثرین رو پڑے۔ کراچی کے جناح اسپتال کی بجلی 2 گھنٹے تک بند، موبائل فون کی روشنی میں آپریشن، ڈاکٹرز کو شدید مشکلات کا سامنا۔
लाहौर के मेयो अस्पताल में अमले की मोटरसाइकिलों से मरीजों को अजियत, हड्डी वार्ड जाने वाला रास्ता पार्किंग बन गया। ₹20 की पर्ची ली है, हम इधर आए हैं, पार्किंग का कोई सिस्टम नहीं है, तो इसीलिए जिधर दिल है उधर खड़ी कर दे। जब यहाँ पे कोई रोकने वाला नहीं है, पर्ची दे दी हमें, उन्होंने लेने ₹20, उनको क्या लगे यहाँ पे गाड़ी खरीद। सबसे पहले आपको बताएं, ट्रैफिक जैम ने कराची वालों का पूरा दिन बर्बाद कर दिया। शारे फैसल पर एहतजाज की वजह से बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा। मरीज, कैदी, एयरपोर्ट जाने वाले सब फंस कर रह गए। दिन भर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं और शहरियों को इसकी वजह से शदीद तरीन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मरीज अस्पताल न पहुंच सके, कैदियों की वैन भी यहां पर फंसी रही, जबकि एयरपोर्ट जाने वाले भी यहां पर फंस कर रह गए। शारा फैसल पर दिन भर इस ट्रैफिक जैम की वजह से शहरियों ने अजियत में वक्त गुजारा। और ये ट्रैफिक जैम हुआ क्यों, इस पर आते हैं। शारा फैसल पर एहतजाज हुआ जिससे ट्रैफिक जैम हुआ और पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस ने फैसल बाबडा को हिरासत में ले लिया, जिस पर आपको ये भी बताएं कि फैसल बाबडा ने रैली से खिताब भी किया था। तहरीक इंसाफ का इस एहतजाज से कोई ताल्लुक नहीं, ये कहना है इमरान इस्माइल का, लेकिन फिर भी फैसल बाबडा वहां पर पहुंचे, उन्होंने खिताब किया, जिसकी वजह से उनको अरेस्ट किया गया, उनको हिरासत में ले लिया गया। गैर जिम्मेदाराना इकदाम ने अवाम को अजियत में मुब्तला किया रखा, ये कहना है नईमुल हक का। फैसल बाबडा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे। राव अनवार ने यह इंदिया दे दिया है। पुलिस की जानिब से यह इशारा दिया गया है कि फैसल बाबडा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आपको यह भी बताएं कि राव अनवार का यह कहना है कि कार्य सरकार में मुदाखलत, सड़क ब्लॉक करने और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अली मेहदी हमें इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे। अली, अभी ताजा तरीन सूरत हाल क्या है? फैसल बाबडा कहाँ है? जी बिल्कुल, एसएसपी राव अनवार की निगरानी में होने वाली कार्रवाई के बाद पीटीआई के रहनुमा फैसल बाबडा को एयरपोर्ट थाने मुंतकिल कर दिया गया है। दीगर गिरफ्तार अफराद के साथ पुलिस हुक्काम का कहना है कि फैसल बाबडा और दीगर अफराद के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। शाहरा फैसल की मरकजी शाहरा बंद करने के हवाले से भी और दीगर जो दफात है वो भी उनके ऊपर जो है चार्ज की जाएंगी, क्योंकि एहतजाजी धरने में जो है लाउड स्पीकर एक्ट की भी खिलाफ वर्जी की गई और आवाम को जो है शदीद अजियत का सामना करना पड़ा है। 5 से 6 घंटे शहर की सबसे अहम और मसरूफ तरीन शाहरा है शाहरा फैसल, जिसको मुकम्मल तौर पर बंद रखा गया। हजारों गाड़ियां जो है वो बिल्कुल जो है वो फंसी रही हैं। एयरपोर्ट से लेके डिग्रोड तक और एयरपोर्ट से लेके मलिर के इलाके तक जो है वो गाड़ियों की तवील कतारें लगी हुई थी। ठीक है अली मेहदी, आप साथ ही रहेगा। यहाँ पर अपने नाज़रीन को हम ये भी बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान इस्माइल ने वाज़ेह किया है कि तहरीक इंसाफ का इस एहतजाज से कोई ताल्लुक नहीं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान नईमुल हक का यह कहना है कि फैसल बाबडा के गैर जिम्मेदाराना इकदाम ने अवाम को अजियत में मुब्तला रखा। आपको बताएं, सुपर हाईवे पर हादसे के बाद ऑयल टैंकर में खौफनाक आग लग गई। 3 अफराद झुलसकर जाँ बहक हो गए और दर्जनों गाड़ियां जल गईं। सुपर हाईवे पर हजारों गाड़ियां सुबह से शाम तक फंसी रहीं। आपको बताएं, ये खौफनाक हादसा आज पेश आया सुपर हाईवे पर, जब एक ऑयल टैंकर एक गाड़ी से टकरा गया और उसके बाद 3 अफराद इसमें जाँ बहक हुए और गाड़ियों की जो कतारें लगी वो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। हजारों अफराद इस हादसे के बायस परेशानी में मुब्तला रहे। सुबह से शाम तक मुतासरा गाड़ियां यहां से हटाई ना जा सकी और अजियत से 2-4 लोग सारा दिन हुक्काम को कोसते रहे। सुपर हाईवे पर डीएचए सिटी के करीब सुबह सवेरे अलमनाक हादसा। तेज रफ्तार ऑयल टैंकर गाड़ी से टकराया तो आग लग गई। 3 अफराद जान से गए। आसमान को छूते शोलों ने कई गाड़ियां भी राख कर दी। कई घंटे की जिद्दोजहद के बाद आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन मुतासरा गाड़ियां न हटाई जा सकी, जिसकी वजह से सारा निजाम चौपट हो गया। दोनों ट्रैक बंद हुए तो गाड़ियों की कई किलोमीटर तवील लाइनें लग गईं। हजारों अफराद सारा दिन फंसे रहे। यहाँ आग लगी हुई थी, एक छोटी गाड़ी में पूरी फैमिली जल रही थी, 2 बच्चे थे, 2 मियाँ बीवी थे, उनको निकाला है। ना इधर कोई खाना मिल रहा है ना पानी मिल रहा है। होटलों पे जाते हैं तो पार्सल भी नहीं देते। गाड़ियाँ छोड़ के तो भागेंगे ना, कोई इंतजाम ही नहीं है यहाँ पे, तो क्या करेंगे। करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, अरबों रुपए का नुकसान है। आप देख सकते हैं कितनी गाड़ियाँ जली खड़ी हैं, क्या नुकसान है, सारा आम आवाम का नुकसान है। गाड़ियों में देखो आप, जाके बसों में लेडीज बच्चे
जंगल में पड़े हैं, ना पानी का इंतजाम है, ना कोई बात है। हजारों अफराद अजियत से दो चार, बेयारो मददगार, लेकिन कोई हुकूमती नुमाइंदा हाल तक न पूछने आया। बिलाखिर 11 घंटे के बाद मुतालिका हुक्काम को होश आ ही गया और मलबा हटाकर रास्ता खोल दिया गया। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार का एक ताज़ा बयान सामने आया है। वो कहते हैं कि ये कहना गलत है कि फौज एक्शन प्लान पर अमल कर रही है और हुकूमत नहीं। उनका कहना है कि कौमी एक्शन प्लान सिविल हुकूमत ने बनाया, 20 में से 9 नुकात का ताल्लुक सूबों से है। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार का ताज़ा बयान सामने आया है। वो कहते हैं कि फौज के साथ पुलिस का किरदार भी काबिल तारीफ है। पुलिस बगैर तरबियत और आलात के जंग लड़ रही है। दुश्मन बॉर्डर पर नहीं, हमारे दरमियान ही मौजूद है। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार आज बोल रहे थे और उनका कहना था कि यह कहना गलत है कि फौज एक्शन प्लान पर अमल कर रही है और हुकूमत नहीं। और आपको बताएं कि पाकिस्तान ने आईना दिखाया तो भारत बुरा मान गया। कराची में हाई कमिश्नर को तकरीब में शिरकत से रोकने पर भारत ने एहतजाज किया। भारत ने मुझे भी कई बार रोका। अब्दुल बासित ने इस पर यह करारा जवाब दिया। भारत ने पाकिस्तानी हाई कमिश्नर के दिल्ली से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ ओछे हथकंडों से कभी बाज न आया। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की नक्ल हरकत महदूद करने पर उतर आया। कराची में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से भारतीय हाई कमिश्नर गौतम बंबावाले को मदऊ करके तकरीब मनसूखी पर भड़क उठा। नई दिल्ली में तलबी के बाद एहतजाज को पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने मुस्तरद कर दिया और भारतीय वजारत खारजा को याद दिलाया कि उन्हें भी मुतादिद तकरीबात में बुलाकर शिरकत से रोका गया। करारा जवाब मिलने पर भारतीय हुकूमत फिर तैश में आई। अब्दुल बासित की नक्ल हरकत महदूद करने के लिए दिल्ली से बाहर जाने समेत इदारों को उन्हें तकारीब में बुलाने पर पाबंदी के अहकाम दे दिए। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने कहा कि भारत अपनी जालिमाना पॉलिसियों को तब्दील करे और कश्मीर पर किए जाने वाला जुल्म फौरी तौर पर बंद करे। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस छोटी सी ब्रेक के बाद। देखते रहिए दुनिया न्यूज़। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि वजीर आजम के बैरून मुल्क दौरे के बाद पीटीआई की क़यादत ने कप्तान को रैवेंड मार्च की तारीख तब्दील करने का मशवरा दे दिया। पनामा रेफरेंसेस के मामले पर खुर्शीद शाह ने स्पीकर के फैसले के खिलाफ अदालत जाने का इशारा दे दिया है। 24 तारीख को रैवेंड मार्च अनाउंस कर रहा हूं। इमरान खान ने 24 सितंबर को रैवेंड मार्च का ऐलान किया, मगर ये भूल गए कि उस दिन वजीर आजम मुल्क में नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं ने कप्तान को तारीख में रद्दोबदल का मशवरा दे दिया है। अपोजिशन रहनुमाओं से राब्ता करके रैवेंड मार्च में शिरकत की दावत दी जाएगी। दूसरी तरफ वजीर आजम के खिलाफ रेफरेंस मुस्तरद करने पर अपोजिशन सीख पा है। इमरान खान जुमेरात को कौमी असम्बली में भरपूर मौक़िफ़ पेश करेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने खुर्शीद शाह से मुलाकात की। इस मौके पर अपोजिशन लीडर ने स्पीकर की रूलिंग अदालत में चैलेंज करने का इशारा दे दिया। रूलिंग चैलेंज हो सकती है, ट्रेडिशन में डाल दिया। ये तो अपोजिशन में कल हम बैठेंगे, मगर इसमें पहले फैसला खुद पीटीआई को करना पड़ेगा। मुस्लिम लीग काफ के सदर शुजात हुसैन ने रैवेंड मार्च की मुखालिफत कर दी है और मकाम की तब्दीली के लिए इमरान खान से राब्ते का फैसला किया है। चौधरी शुजात का मौक़िफ़ है कि अगर घरों के घेराव की रस्म चल निकली तो अच्छा नहीं होगा। वजीर आजम नवाज शरीफ कहते हैं सियासी मुखालिफिन को कल कराची के अवाम ने खूब जवाब दिया। सियासी मुखालिफिन को पंजाब के अवाम भी जवाब दे रहे हैं। चित्राल में खिताब के दौरान वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने सियासी मुखालिफिन को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि हमारे दिलों में बुग़्ज़ होता तो खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमत बनाते। अगर बुग़्ज़ होता तो शायद हम अपनी हुकूमत बनाते खैबर पख्तूनख्वा में। हमने कहा नहीं, जहाँ किसी को मैंडेट मिला है, जहाँ किसी ने इलेक्शन जीता है, हम उसका एहतराम करते हैं और हमने साबित कर दिखाया। वज़ीर आज़म ने कहा कि सियासी मुखालिफिन को कल कराची के अवाम ने जवाब दे दिया। पंजाब में भी अवाम उन्हें खूब जवाब दे रहे हैं। रोज मुखालफाना बयान देते हैं, रोज वो अपना टीवी पे आके जो है बढ़ चढ़ के पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। हम उनकी किसी ऐसी बातों का ना बयान देते ना मैं उसका नोटिस लेता हूँ। पाकिस्तान के अवाम पंजाब में भी जवाब दे रहे हैं और फिर पाकिस्तान के अवाम कल कराची में भी उन्होंने जवाब दिया है। वज़ीर आज़म ने मुखालिफिन को दुआ दी कि अल्लाह उन्हें तरक्याती काम करने की हिदायत दे। एक जानिब सियासी जंग जारी है तो दूसरी जानिब कराची में बैनर्स की सर जंग शुरू हो गई है। नामालूम अफराद ने अब बानी एमक्यूएम के खिलाफ बैनर्स लगा दिए हैं। देखिए अली मेहदी की ये रिपोर्ट।
MQM पाकिस्तान की जानिब से बानी मुत्तहदा से लाताल्लुकी के बाद नामालूम अफराद सरगर्म हो गए हैं। पहले बानी मुत्तहदा के हक में बैनर्स लगाकर खौफ और दहशत फैलाई गई और अब जो मुल्क का गद्दार है वो मौत का हकदार है कि तहरीरों के बैनर्स मुख्तलिफ इलाकों में लगा दिए गए हैं। सियासी कशीदगी के माहौल से शहरी खौफजदा नजर आते हैं। ये चीज नहीं होनी चाहिए। इस तरह कौमें जो है ना बिखर जाती हैं। ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त के अंदर कोई खतरा पैदा होता चला जा रहा है। ये चीजें देख देख के इंसान बहुत परेशान हो रहा है। बैनर्स के जरिए शुरू होने वाली महाज आराई पर MQM पाकिस्तान के सरबरा फारूक सत्तान ने लाताल्लुकी का इजहार करते हुए कहा कि अल्लाह बैनर्स लगाने वालों को हिदायत दे। जो उस तरफ के बैनर लगा रहे वो भी नामालूम अफराद हैं, जो इस तरफ के बैनर लगा रहे वो भी नामालूम अफराद हैं। शहर में सियासी बैनर्स लगाने, फाड़ने और उतारे जाने का सिलसिला जारी है। ऐसे में पुलिस ताहाल इन नामालूम अफराद का सुराग नहीं लगा सकी है। और कहते हैं पहले तोलो फिर बोलो। पंजाब हुकूमत के तर्जुमान ज़ईम कादरी की वज़ीर आज़म के दिफा में ज़बान फिसल गई और कुछ का कुछ बोल गए। नवाज शरीफ तो मैंने कह दिया नाहिल हो जाएंगे, ये नाहिल हो जाएंगे। ये क्या हो गया? जज्बात में क्या कह डाला? नवाज शरीफ तो मैंने कह दिया नाहिल हो जाएंगे, ये नाहिल हो जाएंगे। कप्तान ने मचाया पनामा का शोर। हुकूमती वज़रा की वज़ीर आज़म के दिफा में लग गई दौड़। ऐसे ऐसे जवाब दिए कि ज़ईम कादरी जज्बात की रो में कुछ का कुछ बोल गए। नवाज शरीफ तो मैंने कह दिया नाहिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। हाय रे हाय, हद कर दिया आपने। कराची मवेशी मंडी के बारे में आपको बताएं, जहां पर देवकामत बछड़ा बोल्ट 2 आ गया है और इसके खूब चर्चे हैं। मालिक ने 10 लाख रुपए कीमत मुकर्रर कर दी है। देखिए शिराज अहमद की रिपोर्ट। फीट ऊंचा कद, 20 मन वजनी और 2 दांत वाला ये बछड़ा देखने में तो दबंग है, लेकिन वैसे बहुत ही मासूम है। जानवर तो बहुत खूबसूरत है मगर दाम बहुत हाई है इनके। दाम थोड़ा अच्छे हो तो फिर रहने का मूड हो। इसमें है खास बात ये है कि लंबा है माशाल्लाह, वजन के हिसाब से भी, और एक वजूद है इसका, और कलर भी है माशाल्लाह प्यारा। लेकिन अभी हर आदमी की तो इस तरीके से रेंज नहीं होती है ना, 10 लाख रुपए भी अहमियत रखते हैं ना। जानवर तो बड़ा अच्छा है, खूबसूरत है माशाल्लाह, बाकी इनके रेट भी बड़े आला तरीन है। बोल्ट 2 के मालिक का कहना है बड़े जतन से पालने के बाद बोल्ट 2 एक देवकामत बछड़ा बना है। 5 लीटर दूध पीता है और 2 टाइम इसकी ग़िज़ा है, बाटे की सानी होती है इसकी। पूरी दुनिया को पता है जो जानवर बाटे का पलता है वो अलग ही चीज़ होती है। अगर आप बोल्ट 2 को खरीदने का इरादा रखते हैं तो हम आपको बताते चले कि व्यापार ने इसकी कीमत 10 लाख रुपए मुकर्रर की है, लेकिन साथ ही भाव ताव की गुंजाइश भी रखी है। कैमरामैन नूर अहमद के साथ शिराज अहमद। कराची में पाकिस्तान जिंदाबाद रैली। शाहराह फैसल पर बदतरीन ट्रैफिक जैम के बाद पुलिस का लाठीचार्ज, पकड़ धकड़, फैसल वाबरा भी ज़ेर हिरासत। कोयटा हमले की तहकीकात, हमला आवर करार दिया गया शख्स शहीद निकला। वज़ीर दाखिला की तस्दीक, व्हाट्सएप में आने वाले 4 दहशतगर्द गैर मुल्की थे। चौधरी निसार का सेनेट में बयान।